حیدرآباد۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز ون میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر شرپسند لوگوں نے مسلمانوں کے جذبات کو تکلیف پہنچایا جا رہا ہے۔ حضور کی شان میں گستاخی کی گئی، جس کی وجہ سے اہل سنت الجماعت سے تعلق رکھنے والے جناب اولیاء حسینی مرتضی پاشا قادری صاحب اور حافظ مظفر صاحب اور دیگر اہل سنت الجماعت سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے حیدرآباد پولیس کمشنر مہندر ریڈی سے ملاقات کی اور شرپسند لوگوں کے خلاف کمپلین دی گئی۔ نیوز ون کے نمائندے لطیف کامران انصاری کی رپورٹ۔ ہندوستان کے اندر وہ افراد جو ملک کی سلامتی کو خطرہ بڑھے ہوئے، ملک کی سلامتی کو خطرہ بڑھے ہوئے اور مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا نہایت ایک مؤثر میڈیا ہے جس سے لوگ مختلف چیزوں کو حاصل کرتے ہیں، سیکھتے سمجھتے ہیں، بہت اچھے اچھے پیغام ہم کو دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر ان لوگوں نے جو چیز کی ہے کہ آج ان لوگوں نے ہندوستان کے اندر ہندوستان کی سلامتی کو خطرہ بنتے ہوئے ایک نفرت پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال ان لوگوں نے نفرت کے لیے کیا ہے اور مسلسل پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت میں بے ادبی اور گستاخیاں کر رہے ہیں اور مسلسل ہم اس کی شکایتیں بھی درج کروا رہے ہیں۔ مسلسل آگے الحمدللہ ہم ایک اچھے شہری کی طرح یہ بتلا رہے ہیں کہ آپ حضرات قانون کے ماشاءاللہ ذمہ دار افراد ہیں، ہم کو انصاف دلائیں، پارٹیوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں، ان کو جیل میں ڈالیں۔ وہ لوگ جو آج ہندوستان کی سلامتی کو خطرہ بنے ہوئے ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں بے ادبی گستاخی مسلمان برداشت کر ہی نہیں سکتا، نہ صرف مسلمان بلکہ ہر منصف مزاج ہندوستانی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا کہ آپ کسی بھی مذہبی پیشوا کے بارے میں اس قسم کے گندے الفاظ استعمال کریں، ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کریں۔ تو میں پرزور اپیل کرتا ہوں، چاہے وہ خاتون آشو پریہار ہو یا پھر بھوتیش رانا ہو، ان دونوں کے لیے ان کو سخت سے سخت سزا دلائی جائے، ان کو جیل میں ڈالا جائے۔ جب تک کہ ہم چین سے بیٹھیں گے نہیں، آپ حضرات سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ آپ ان کو جیل میں ڈالیے گا، ان کے خلاف ہندوستان کا جو قانون آپ کو اجازت دیتا ہے، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 3 سال کی ان کو قید ہو سکتی ہے، جیل میں جا سکتے ہیں۔ ہمارے جذبات کو کچھ اور ہی کہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ کے پاس بار بار رجوع ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ حضرات اس سلسلے میں توجہ دیں۔ تو میں بھرپور امید بھی رکھتا ہوں کہ تلنگانہ حکومت سے بھی اور یہاں کی پولیس سے کہ آپ حضرات بالخصوص پر توجہ دیں اور اس کے خلاف وہ ہندوستان کی کسی خطے میں کیوں نہ ہو اسے اٹھا لائے، اسے جیل میں ڈالے، جب تک ہمیں سکون نہیں ملے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ حفیظ مظفر خان صاحب آج یہ گیدرنگ میں پورا حیدرآباد سٹی کے مسلمان آرگنائزیشن کے ہیڈس اور ہمارے جوائنٹ کمشنر اسپیشل برانچ پرمود صاحب، ڈی سی پی ساؤتھ سچنارائن صاحب، ایڈیشنل ڈی سی پی بابو راؤ صاحب، میری طرف سے آپ سبھی کو السلام علیکم۔ آپ سبھی لوگ محنت کر کے ہمارے آفس کو یہ ریپرزنٹیشن، یہ سوشل میڈیا میں جو چل رہے ہیں ان کے خلاف یہ ریپرزنٹیشن کرنے کے لیے لگائے ہیں۔ حیدرآباد سٹی پولیس
भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, सीपी साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, जो आज अहले सुन्नतुल जमात के अजीम कायद हजरत उलमा मौलाना सैयद शाह वली हुसैन साहब मारूफ रहमतुल्लाह पाशा और मुस्तफ़ा पाशा और सब इन तमाम की क़ियादत में जो आकर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जो तफसील देखी गई है, तो बड़ी हम लोगों के वास्ते एक फ़ख्र की बात है हैदराबाद के ख़ासतौर से मुसलमानों के लिए। तो डीसीपी साहब ने भी आपके दुख में बराबर के दुख का इजहार किया और कमिश्नर साहब भी बड़े ही दिल से यानी इस मामले में इंतहाई दुख और तकलीफ का एहसास किया है और ये तयक़ुन दे रहे हैं कि आपके साथ ये हैदराबाद की पुलिस है और हर कम्युनिटी के साथ है कि ये चाहते हैं कि किसी की दिलादारी ना हो और ना कोई दिलादारी करे। अगर साहब के तासुरात से ये मालूम हो रहा था कि अगर वो जो कोई भी लेडी हो या मेल पर्सन अगर वो हैदराबाद में होता तो मैं समझता हूँ कि आपके हमारे रिप्रेजेंटेशन देने के उतने वक्त में ही वो अरेस्ट हुआ जाता। और तीसरे बात की बात है कि वो कहीं लीडर और कहीं है, ठीक है। तो अभी प्रमोद कुमार साहब भी बता रहे थे कि इनके पास एक बाज़ाब्ता रिंग है, वो 24 घंटे उस पर काम कर रहे हैं। जरूर ये लोग काम तो करेंगे, उसमें एक आध चीज मिस होती है तो ये हमारी नजरों में आती है, उसके ऊपर भी एक्शन लेंगे ताकि हैदराबाद का पुरअमन फिजा जो किसी भी एतबार से मुकद्दर ना हो। तो अब हमारा भी ये फरीदा बनता है कि हमारे जज्बात के एहसासात के साथ आपके जज्बात और एहसासात भी हैं, तो हम भी इनके एहसासात का एहसास करते हुए बड़े ही पुरअमन अंदाज में अपने अपने नौजवानों को समझाएंगे। इंशाल्लाह समझाएंगे ना, जरूर समझाएंगे। तो हमारा जो मकसद है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पाशा की ज़रीन क़ियादत में सीपी साहब ने अपने जाएंगे, उनकी हिम्मतें पस्त हो जाएगी। अगर बस ऐसा पकड़कर छोड़ देंगे तो फिर मुझको कैसा सुकून से रखा जाता है। तो ये जो मजहबी मामला है बहुत हसास मामला होता है, तो और इसमें दफात और ज्यादा। अब हमारा काम है कि जब कभी हमारे पास कोई भी जज्बात हो, किसी को खायद मान रहे हैं तो खायद की जरूर उनके दानिश में लाना चाहिए। फिर खायद जो हुक्म देता है तो फिर आवाम को मानना ही चाहिए, मानेंगे ना। और मगर हर आदमी अगर खायद बनने गया तो मामला खिचड़ी वाला होगा। टेलर को अगर पैसा दे दिए तो सी बोले तो बोला अवले सीता वो इन्हें कट कर दिया, अवले सीता इन्हें कट कर दिया, तो बात पूरी। सोशल मीडिया में ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स अफेक्ट करने के लिए जो भी लोग एक गलती से कानून के खिलाफ जो पोस्ट डाल रहे हैं, हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से हम उनके खिलाफ ज़रूर एक्शन ले लेंगे तुरंत। और जो भी हैदराबाद से करते हैं उनके खिलाफ तो जल्दी से जल्दी एक्शन हो जाता है। और जो बाहर से करते हैं विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, जहाँ तक हो सकता है हैदराबाद सिटी पुलिस हमारे टीम्स को भेज के उधर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के मदद से पूरा लोगों को गिरफ्तार करके एक कोर्ट्स में प्रोड्यूस करके एक कानून की मुकाबला ये एक्शन लेने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से पूरा ताकत से हम एफर्ट्स करेंगे। और जो इतना ये पूरा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स हमारे साथ आके हमारे पास आके ये जो रिप्रेजेंटेशन दिया है, ये सोशल मीडिया में जो पोस्टिंग्स हो रहा है उनके खिलाफ हैदराबाद सिटी पुलिस में ये डिटेक्ट करने के लिए हमारे स्पेशल ब्रांच में ये 24/7 ये सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट है। ये साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन के लिए भी तेलंगाना स्टेट में, ये पूरा दुनिया में, हम पूरा देश में हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस का ये साइबर क्राइम्स लैब बहुत अच्छा है। साइबर क्राइम्स लैब, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट और पूरा स्पेशल ब्रांच, हैदराबाद सिटी पुलिस के पूरा अधिकारियों, पूरा स्टाफ इसमें इन्वॉल्व होके जो भी ये सोशल मीडिया में ये डिस्टर्बेंस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम एक्शन लेने के लिए पूरा मेजर्स लिया है। और हमारी तरफ से ये बाहर को स्टेट्स को भी हम टीम्स भेजा है
उनको पकड़ के लेके आने के लिए। हैदराबाद सिटी में अमन और शांति रखने के लिए ये पूरा पब्लिक का ये वेलफेयर डेवलपमेंट, उनका भलाई के लिए हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी को हम स्पेयर नहीं करेंगे और उनके खिलाफ कठिन से कठिनाई एक्शन रहेगा। और हम पूरा ये 15,000 पुलिस फोर्स ये कार्रवाई में निमग्न है और आने वाले दिन में और कोई ऐसे करे तो बहुत स्ट्रांग एक्शन रहेगा। थोड़ा उठाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हैदराबाद ये शहर, पुराने शहर से बिलखुसूस तमाम मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता अफराद यहाँ आए। हमारे साउथ जोन DCP साहब से मुलाकात की। आपकी नुमाइंदगी पर, आपकी सिफारिश पर CP साहब ने हमें वक्त दिया और हम आपके साथ यहाँ पर CP साहब से मुलाकात किए। और जो कुछ हमारे मसाइल थे सोशल मीडिया के हवाले से, आक़ाए नामदार नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबियाँ, गुस्ताखियाँ जो हमारा दिल पारा पारा कर रहे थे, इस सिलसिले में हमने अपने गम का एहसास आपके सामने ज़ाहिर किया। आपने भी हमारे इन एहसासात का साथ दिया और वादा भी किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उजलत में आपने टीम को रवाना कर दिया है उन कातियों के शहर तक कि उनको हिरासत में लिया जाए और हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए। बिरादरान अजीज़, हम जिस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, हम अहले इस्लाम हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। और इसमें भी जो सेक्टर होता है सूफ़ीज़म, उस सेक्टर से हमारा ताल्लुक़ है। तो हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि नफ़रत का जवाब नफ़रत से देंगे तो नफ़रतें बढ़ेगी। इसलिए हम नफ़रत का जवाब मोहब्बत से देना चाहते हैं, मोहब्बत से देना चाहते हैं। वो हज़रात जो आज मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबियाँ, गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, इसकी दो वजूहात हो सकती है। एक ये है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत से, उनकी ज़िंदगी से, उनकी शाम व सहर से वाकिफ़ नहीं है। इस बुनियाद पर, अदम वाकिफ़ियत की बुनियाद पर वो एतराज़ात कर रहे हैं। एक बुनियाद ये हो सकती है कि वो लोग सिर्फ़ एक हसद की बुनियाद पर, नफ़रत की बुनियाद पर, बुग़्ज़ की बुनियाद पर हुज़ूर पाक की शान में बेअदबियाँ कर रहे हैं। अगर उनको मालूमात ना हैं तो उनको चाहिए कि मालूमात हासिल करें पैगम्बर इस्लाम के बारे में, ताकि आपके ज़बानों में जो ये कड़वाहट है वो दूर हो जाए। और अगर आपको नफ़रत है तो इंशाअल्लाह जो हम आक़ाए नामदार के मानने वाले हैं, मैं आप तमाम के हवाले से मैं ये बात उन तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि हम अपने अखलाक का भी मुजाहरा करेंगे, मोहब्बतों का भी मुजाहरा करेंगे। एक दिन आपकी ये बेजा नफ़रत हमसे एक दिन मोहब्बत में ज़रूर तब्दील होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालों का सूरत भी आना भाई। आप आइए, मीडिया से भी है और हमारी सोसाइटी के मेंबर भी हैं।